So let us start today's class. So in the last class, I was doing some problems from set 3.1. You know? So we have done the last problem, problem number 5. If alpha u is equal to 0, if and only if either of alpha 0 or u 0. है ना? U0. This problem we have done in the last class, and I shared the lecture also for the students who are busy in some other important activities. So next, one last problem of this problem set 3.1. Problem set 3.1. Last problem, problem number 8, page number 68. You have the soft copies, so that's why I'm writing the page numbers. So you need not to write the problem. When you will be watching these lectures, you can see page number 68 to problem number 8. You know? So this is the problem, last problem of this problem set. Let V be a real vector space. V be a real vector space. Of course, we are all the time we are taking real vector space only. So no need to mention even every time. And X be an arbitrary set. X be an arbitrary set. Any set. Let Vx let Vx be the set of all functions. This denotes set of all functions f from x to v. Okay. V be a real vector space. देखो V, as I told you, we are considering that V as a real vector space. तो you can suppose that it is like R also, है ना? क्योंकि आपका जो R है set of real numbers, it is a vector space, real vector space, है ना? In your book notation, they are denoting it by V1. बुक में V1 से डिनोट कर रहे हैं या V से कर देते हैं. यहाँ पर ये V कोई आर्बिट्रेरी ले रहे हैं, कोई भी आर्बिट्रेरी है, रियल वेक्टर स्पेस. तो R भी हो सकता है, इट मे बी R आल्सो. क्यों भाई? कैन आई कंसीडर R एज अ रियल वेक्टर स्पेस? पीयूष शर्मा बताइए. जयदीप सिंह. Yes, sir. Yes, sir. है ना? दिस R will be having all the properties. You know, it's a set of real numbers. In fact, R is a field, R is a group. So I can consider R is also a vector space, but they are saying that is any V. So V को आप R सपोज कर सकते हैं ना. If you want to see कि ये V क्या होगा. देखो, if you want to understand something, तो you try to see the structure always. कि स्ट्रक्चर क्या होगा. जैसे मैंने आपसे कहा कि V कोई रियल वेक्टर स्पेस है, तो आप स्ट्रक्चर सोचोगे यार क्या स्ट्रक्चर होगा ऐसा. तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि R, हम जानते हैं कि R एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो रियल वेक्टर स्पेस है. उसमें नंबर्स होते हैं, उसमें एडिशन होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है. तो जब आपको स्ट्रक्चर दिख जाएगा तो यू विल हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थिंग कि हाँ ये ऐसा होगा. है कि नहीं है भाई? Yes, sir. Yes, sir. ट्राई टू विजुलाइज. जैसे कोई कहे कि भाई हम पहाड़ों पे जाएंगे, तो यू विल विजुलाइज कि यार पहाड़ों में ऐसा ऐसा होगा. तो आपको एक पिक्चर सामने आ जाएगी कि हाँ इस तरीके की चीजें होंगी वहाँ पे. माउंटेन्स होंगे, रिवर होगा, और क्या नाम है आजकल तो वहाँ पर वो भी आया हुआ है, स्लाइड, लैंडस्लाइड. So prove that. Question is now prove that Vx, ये जो सेट ऑफ ऑल फंक्शंस है, तो ये एक सेट है आपका. प्रूव दैट Vx इज अ रियल वेक्टर स्पेस. यू हैव टू शो दिस इज अ रियल वेक्टर स्पेस फॉर. अब अगर रियल वेक्टर स्पेस है तो इट विल बी हैविंग हाउ मेनी ऑपरेशंस? Sir, 2. 2 operations, है ना. तो they are saying, they are giving कि prove that Vx is a real vector space for point-wise addition, and scalar multiplication. They are giving you this thing.
whenever somebody asks that show something is a vector space, they will also give you operations, है ना, where definitions are analogous to those for real valued functions. क्या लिखा है इन्होंने, where definitions are analogous to those for real valued functions, मतलब इनकी डेफिनेशन वही है जो आपकी रियल वैल्यूड फंक्शंस के लिए होती है. तो ये जो पॉइंट वाइज एडिशन है, एक्चुअली I have already discussed, I think one time, this point one addition, how to add two functions. Otherwise, it is given in page number 25 पे, it is given already. ये given है ना, definition given है. If you want to see, you can see here definition 1.7.3 page number 25 है ना. So here given what is point wise addition. Point wise addition simply होता है कि if you have two functions, suppose f is a function from a to r, some set से real valued function है, g is a function from a to r, g is another real valued function, so you can add these two functions f plus gx by this formula fx plus gx for all x in a, and similarly you can multiply also alpha f of x is equal to how much, alpha f of x. है ना, for all. It is called point wise addition and scalar multiplication. So these two operations are given to you na, ये operations they are defined in page 21. So you have vector addition, you can see, अगर मैं इसे vector कहूँगा तो you have vector addition, scalar multiplication, यही हमें चाहिए था बस. So these things are given to you. Now I have to show that Vx is a vector space. So Vx is what? So let us come to the problem, है ना, proof करना है solution. So if you see, so Vx is what? Vx is the collection of all functions f such that f is a function from x to v. Okay? ये आपको गिवन है. x एक्चुअली कैपिटल बनाया हुआ है, नॉट स्मॉल. स्मॉल से हम एलिमेंट लेते हैं, ये कैपिटल x है. यू कैन टेक कैपिटल x. x मीन्स व्हाट? इट्स अ सेट. So it is a set actually. So it means what? The elements of Vx are all real valued functions. So firstly I have to show that, because it is already given with this point wise addition, इसका मतलब they are already giving you the that they are binary operations, है ना. So two binary operations are given to you. First thing is a, है ना. So अगर I am taking first thing is binary operations. What are your binary operations or closure property? So these are the binary operations जो आपको given है यहाँ पे. What is that? f plus gx is equal to fx plus gx. It is given already okay, with these two operations, है ना. तो you know कि वैसे भी if you have two functions को add करेंगे fx plus gx, so it will be again a function, so it will be belonging to vx. क्यों भाई? Sum of two real valued function will again a function. Yes, So sir. you have fx is equal to some x square, and gx is equal to, suppose you have sin x. So what about fx plus gx? यही तो आएगा. fx plus gx, you will be adding it, it will be coming x square plus sin x. So it is again a real valued function, है ना. So this belongs to vx. ये कुछ और फंक्शन बन जाएगा, इससे ग्राफ कुछ चेंज हो जाएगा बस. Similarly, this scalar multiplication, it is also belonging to vx. But if you have fx x square, so what about alpha fx? It will become simple alpha x square. क्या करेगा ग्राफ को? if alpha greater than 1, तो ये आपका ग्राफ को क्या कर देगा? It will be magnifying the function. alpha 1 से बड़ा 1 है, 2 है, 3 है. अगर alpha less than 1 lying between 0 to 1, तो उसको ये shrink कर रहा होगा, contract कर रहा होगा. और alpha नेगेटिव होगा तो उसको रिवर्स कर देगा. यही तो होगा, रहेगा तो फंक्शन ही. So these binary operation given to you. Second property, I will check whether it's a, I will check it is an
abelian group or not, है ना. We check for commutative group. तो commutative group के लिए we check Vx for commutative group, क्योंकि आपको वेक्टर स्पेस शो करना है. तो फर्स्ट थिंग इज व्हाट, this commutative group. So you know this, some of these functions they always hold associativity. They will be holding associativity. You can write it, है ना. इस पे अगर हम देखेंगे under this operation तो क्या होगा, it will go, x will go inside, so you can write by this property. देखो by this property now g plus h will be assumed as a function, so you can write fx plus g plus h x in this way, and then you can write fx plus gx plus hx, है ना. Again applying here sum of two property. Now this sum is can be written as fx plus f plus gx gx plus hx, you know, है ना, because here sum of function is always, you can write in bracket form also, and this again can be written as, yes, f plus gx f plus gx and plus hx, or it will become how much, the same, f plus g ब्रैकेट लगाएंगे उसके बाद h को लिखेंगे. but इसको अब you can take x outside, so f plus g plus h and this x, so this implies that so in general you can write f plus g plus h, this equal to f plus g plus h, and hence associativity holds, है ना. It was a simple calculation, I just did it here for the students if somebody is not used to of this type of calculation. It is a simple function problem, functions properties है, आपने जरूर करी होगी 12th क्लास अपने स्कूल टाइम में, आई थिंक. तो ये associativity hold होगी. Second property, as I told you, the two important properties for vector space or for group, existence of identity and existence of inverse, है ना. ये दो प्रॉपर्टी चेक करके हम हमेशा, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन डिस्कार्ड इवन के द सेट इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट. सो व्हाट अबाउट आइडेंटिटी, बताओ, व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ दिस Vx, एनी आइडिया? सर माइनस आइडेंटिटी की बात हो रही है, माइनस की बात मत करो अभी. पहले आइडेंटिटी बताओ, इनवर्स में मत पहुंचो. जीरो फंक्शन सर, हैं, जीरो वेक्टर होगा ना. कौन बोला था अभी आवाज से पहले? जीरो वेक्टर सर, क्योंकि जीरो जीरो फंक्शन ना रियल. जीरो फंक्शन, अच्छा, जीरो फंक्शन सर, है ना जी. Yes, फराज अली की आवाज आई थी शायद, है फराज अली? हाँ सर, हाँ हाँ सर. जीरो फंक्शन, देखो Vx के एलिमेंट, इसलिए मैंने यहाँ लिखा कि योर Vx हैज फंक्शंस, इस सेट के एलिमेंट्स फंक्शंस हैं, ध्यान रखो. तो जीरो इज आल्सो अ फंक्शन, अगर आपको ने पढ़ा हो, जीरो इज अ फंक्शन हुज इमेज इज ऑलवेज जीरो. जीरो इज अ फंक्शन, है ना, जब जो किसी भी एलिमेंट पे ऑपरेट होगा तो ये हमेशा आपको जीरो देगा फॉर ऑल एक्स इन सेट. कोई भी सेट अगर मैं ए लूं यहाँ पे, इट इज कॉल्ड जीरो फंक्शन, है ना. सो जीरो फंक्शन बिलोंग टू Vx और नॉट, ये बताओ. अब हमें ये चेक करना है, तो क्या जीरो फंक्शन x टू v है? जीरो इज अ फंक्शन विच इज मैपिंग ऑल द एलिमेंट्स टू रियल नंबर. v इज अ रियल नंबर, तो जीरो पे अगर मैप कर रहा है तो जीरो क्या है, व्हाट इज जीरो? सर ये रियल नंबर है. रियल नंबर है. सो दिस जीरो फंक्शन है ना, इट इज कॉल्ड जीरो फंक्शन. ये मैं डिफाइन कर दिया. जीरो फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है? हुज इमेज इज ऑलवेज जीरो. सो जीरो फंक्शन ऑलवेज, है ना, मैं एज ए फंक्शन यूज कर रहा हूँ, बड़ा वो बना रहा हूँ. सो दिस जीरो फंक्शन ऑलवेज बिलोंग टू Vx, है ना. और यू नो it will be the identity if you are taking f plus 0x
what will happen? fx plus f 0x, x that means fx 0x is 0, क्या तो ये fx आ गया, है ना? So zero function. So इसका मतलब existence of identity is there. भाई यहाँ से ज्यादा शांति मिल जाएगी तुझे? माइक म्यूट कर दो भाई अपना, अगर कोई और बातें कर रहे हैं तो। फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड्स कम्यूटेटिविटी में, है ना, रोमन उसमें लिख रहा हूं मैं। सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड्स नाउ इनवर्स। बताओ भाई जयदीप सिंह, इनवर्स। सर माइनस हो जाएगा, जैसे अगर जी, f फंक्शन यस, है एग्जैक्टली, क्योंकि माइनस एफ इज आल्सो अ रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना। अगर मैं f का माइनस ले लूं तो माइनस एफ इज आल्सो रियल वैल्यूड फंक्शन, एज आई टोल्ड यू कि अगर एफ एक्स इजिकल टू एक्स स्क्वायर है तो माइनस एफ एक्स कितना हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर। इट इज आल्सो अ रियल वैल्यूड फंक्शन। क्यों? अगर एक्स स्क्वायर आपका ये है, माइनस एक्स स्क्वायर का रिवर्स हो जाएगी, रहेगा तो रियल वैल्यूड फंक्शन सारे। सो माइनस एफ इज आल्सो एग्जिस्ट। तो माइनस ऑफ एफ belongs to vx, and this is the inverse. You can check it. F of plus minus of f x, this can be written as fx plus minus fx. अब देखो माइनस एफ एक्स को आई कैन राइट माइनस आउटसाइड, क्योंकि प्रॉपर्टी मेरे पास ये होल्ड है यहाँ पर। अल्फा एफ इज व्हाट? अल्फा कैन कम अल्फा आउटसाइड ले लें। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी आई कैन टेक माइनस आउटसाइड। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो मैं नहीं ले सकता था। तो माइनस का मतलब एक्चुअली माइनस वन है ये, तो यू कैन टेक माइनस वन आउटसाइड, तो माइनस वन प्लस वन इज माइनस वन, it will become 0 and 0 is the identity. So it is a definition of inverse. So this implies that inverse of every function exists in Vx, and you know कि minus f is also a real number. Real valued function means it is x2, v is a real number, real valued function. क्या कह रहे हैं ये? Real vector space है ना? So that means inverse also existing. Rest of the property, you know, commutativity also holds here. You can check it. F of plus gx is equal to fx plus gx, and sum of two function is always commutative. So gx plus fx, which is you can write g plus fx for all x in the set. Set को मैंने क्या लिया? vx. नहीं, x कहाँ से आ रहा था? x से. For all x in x. So commutativity holds here. Rest of the properties also hold. You can try, है ना? Rest of the properties also satisfied here. एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको लिखना होगा वहां पे क्या प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ क्योंकि वी हैव डन सो मेनी टाइम्स, सो यू कैन लीव इट और यू कैन चेक इट। अल्फा प्लस बीटा एफ, इट इज अल्फा एफ प्लस बीटा एफ, इसे आप चेक करके दिखा सकते हैं, और जो भी प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इट वाज द लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस प्रॉब्लम सेट 3.1. नेक्स्ट वी हैव 3.2 subspaces, है ना। जैसे आपने पढ़ा सबसेट, किसी सेट का सबसेट होता है, क्यों भाई? तो व्हाट डू यू थिंक, सब स्पेसेस से क्या समझ में आता है, बताओ बताइए। सर जो वेक्टर स्पेस होगा हाँ, उसका जो सबसेट होगा वो सब स्पेस हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर वो भी वेक्टर स्पेस हो। हाँ, अगर वो है तो उसको सब स्पेस बोलेंगे। यस, वेरी गुड, बिल्कुल सही डेफिनेशन दिया आपने कि अगर आपके पास कोई वेक्टर स्पेस है, आपने उसका कोई सबसेट लिया, तो राघव ने सही बताया, जयदीप सिंह ने, कि भाई सबसेट तो जरूरी नहीं वेक्टर स्पेस हो, क्योंकि हमने अभी कई प्रॉब्लम्स करी थी लास्ट क्लास में कि उसमें बहुत सारे सबसेट्स थे V4 के, है ना, लेकिन वो आपके वेक्टर स्पेस नहीं थे। जैसे मैंने x4 इजिकल टू 1 ले लिया था, तो इट वाज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो सबसेट नीड नॉट बी अ वेक्टर स्पेस, लेकिन वो सबसेट जो वेक्टर स्पेस है उसे हम क्या कहेंगे? सब स्पेस ऑफ अ वेक्टर स्पेस। इज इट क्लियर? यही इसकी डेफिनेशन है बस।
Definition 3.2.1, page number 69. It is a definition. Let S be a non-empty subset of a vector space V, है ना? You can say a non-empty subset तो होना ही है उसको. A non-empty subset S of a vector space V is called a subspace of V. Subspace of V if S is a vector space under the same operations, है ना? ऑपरेशंस ये वही कैरी करेगा जो V में होंगे, जिससे आ रहा है ये अंडर द सेम बाइनरी ऑपरेशंस ऑफ V, है ना? इसके अंदर ऑपरेशंस वही होंगे, वेक्टर एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और इट विल बी सेम लाइक द वेक्टर स्पेस V विल बी हैविंग. तो एग्जाम्पल आपको, जैसे वो हमने जो एग्जाम्पल्स किए थे, आपके पास स्लाइड्स होंगी, तो हमने प्रूव किया था उसमें कि शो डेट, है ना? जैसे आपकी प्रॉब्लम नंबर 4 थी, मैं उसको रिकॉल कर दे रहा हूँ, पेज नंबर 68 पर था जो हम सॉल्व कर रहे थे. तो आपने लिया था कि V4 इज अ वेक्टर स्पेस. तो इसमें क्या थे, x1 x2 x3 x4, एंड यू आर हैविंग x1 x2 x3 x4, है ना? दे बिलोंग्स टू सम रियल नंबर्स. तो V4 इज अ वेक्टर स्पेस, यू नो इट्स अ वेक्टर स्पेस, है ना? इट्स अ 4 डायमेंशनल स्पेस. डायमेंशन की बात मैं कर देता हूँ क्योंकि डायमेंशन की डेफिनेशन अभी हम आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन यू आर फैमिलियर विद डायमेंशंस क्योंकि आप यू हैव स्टडी एडवांस कैलकुलस, वहाँ पे हम R2 R3 पे करते थे. तो हेयर वी हैव डन वन प्रॉब्लम, अगर आपको याद हो, हमने प्रॉब्लम नंबर ए करी थी. ए में क्या था, x4 इज 0. तो मैंने कहा था आई वाज अज्यूमिंग ए इज अ सेट x1 x2 x3 x4 वेयर x4 इज 0, है ना? एंड रेस्ट आर फ्री वेरिएबल्स. तो यू नो इट इज अ सबसेट ऑफ V4. तो ये वेक्टर स्पेस होगा क्या? ये सब स्पेस होगा V4 का? यस सर. हमने शो किया था यस सर, कि होगा जब भी आपके पास 0 होगी इक्वालिटी, वो हमेशा सब वेक्टर स्पेस बनाएगा, है ना? तो यू नो सिंस A इज अ वेक्टर स्पेस, है ना? वी हैव प्रूव्ड इट, implies that A is a subspace of V4. सबसेट तो है ना? subspace of V4 because it is a vector space under the same operations. और इसी में मैंने एक B पार्ट लिया था, if you remember. B में I was assuming suppose take is a set of B x1 x2 x3 x4. उस पे हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी थी any variable x1 is 1, है ना? x1 is 1 और बाकी वेरिएबल फ्री वेरिएबल है, तो सबसेट. ये वेक्टर स्पेस होगा क्या? ये हमने शो No, किया sir. था, है ना? बिकॉज आइडेंटिटी इज नॉट एग्जिस्टिंग देयर और स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट एग्जिस्टिंग हियर, यू कैन सी इन माय प्रीवियस लेक्चर. तो हमने शो किया था. तो नाउ B इज अ सबसेट ऑफ V4 बट नॉट अ वेक्टर स्पेस, implies that B is not a subspace of V4, है ना? बस आपको ये चीज चेक करनी होगी कि जो सबसेट दिया हुआ है वो वेक्टर स्पेस है कि नहीं. एक्चुअली ये प्रॉब्लम आप कर चुके हैं ऑलरेडी, डेफिनेशन अब आ रही है. या एक और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं जो इन्होंने दिया हुआ है, ज्योमेट्रिकली एग्जांपल दिया हुआ है ना? आई एम टेकिंग ज्योमेट्रिकल एग्जांपल. सपोज V2 इज गिवन, they are saying suppose V2 is the Euclidean space. यूक्लिडियन स्पेस क्या होता है? यू नो योर R2, है ना? इसी को तो बोलते हो यूक्लिडियन स्पेस. Yes, sir. तो इन्होंने एक R2 दिया हुआ है. तो अगर आप V2 को लिखना चाहें इन द सेट फॉर्म, तो V2 को आई कैन राइट, यू नो, जैसे हमने V4 लिखा था, तो V2 को आई कैन राइट कलेक्शन ऑफ ऑल XY, है ना, सच दैट XY बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स. ये तो होता है.
इसको r क्रॉस r भी लिख सकते हैं आप, r क्रॉस r, क्योंकि आपके ऑर्डर्ड पेयर होते हैं। ये आपका V2 होता है, इसको अगर आप ड्रॉ करेंगे तो योर एक्स वाई प्लेन, दिस इज योर V2। तो ये गिवन है V2 इज अ यूक्लिडियन स्पेस। नाउ दे आर सेइंग टेक एनी स्ट्रेट लाइन एज थ्रू द ओरिजिन O। ओके, टेक एनी स्ट्रेट लाइन, टेक एनी स्ट्रेट लाइन, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं मैं, स्ट्रेट लाइन थ्रू द origin, and I want to explain this example geometrically, you should visualize through the origin। origin से एक लाइन ले लो आप, आपने कहा चलो साहब ये हमने एक लाइन ले ली, चलो थोड़ा सा स्लाइड को खूबसूरत बनाते हैं, कलर इस्तेमाल करते हैं, चलो रेड ले लेते हैं। सो सपोज आई एम टेकिंग अ लाइन थ्रू द ओरिजिन, इंपॉर्टेंट थिंग है थ्रू द ओरिजिन। सपोज इट इज अ लाइन and they are saying this line is denoted by S, ये S है ना, ध्यान से देखो एग्जांपल। सो टेक एनी स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन O, ओरिजिन को उन्होंने O से मान लिया है, और थ्रू द ओरिजिन O। सो एनी पॉइंट P ऑन द स्ट्रेट लाइन कैन बी कंसीडर एज अ वेक्टर। इस लाइन पर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं, उसे मैं एज ए वेक्टर कंसीडर कर सकता हूं। कोई पॉइंट ले लो आप यहाँ पे, उसकी टेल लगा दो, ये वेक्टर बन जाएगा। कोई भी ले लें आप यहाँ से, है ना, इधर से ले लें या इधर ले सकते हो, इधर लेना चाहो इधर ले सकते हैं, तो वेक्टर बना सकते हैं नहीं, यस सर। है ना। सो कितना टाइम है जी, 10 मिनट्स, ओके। सो नाउ एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, तो ये जो एनी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, क्या माय क्वेश्चन इज, क्या ये आपका, अच्छा ये सबसेट है नहीं, दिस S, S इज अ सबसेट ऑफ V2, सबसेट ऑफ V2 तो है। यस सर। यस सर। भाई लाइन Yes, इज अ sir. सबसेट ऑफ अ वेक्टर स्पेस, यू नो दिस थिंग। तो माय क्वेश्चन इज, क्या S इज अ सब स्पेस ऑफ दिस वेक्टर स्पेस? टेक एनी स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन, यस। है ना। भाई होगा नहीं होगा, तो यहाँ पर आप कोई वेक्टर ले लें, सपोज आई एम टेकिंग वेक्टर O, होगा। है ना। अगर मैं Yes, टू sir, वेक्टर होगा। ले लूं OP और एक वेक्टर ले लूं सपोज OQ, वेक्टर हम ले रहे हैं तो वेक्टर हमेशा ओरिजिन से, हमें टेल से ही मानना है। सपोज इट इज योर OP, इट इज योर OQ, तो अगर आप सम करेंगे तो सम ऑफ OP प्लस OQ इज व्हाट, अगेन OQ बिलोंगिंग टू, है ना। एंड अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो OP प्लस OQ इट इज अगेन सम वेक्टर OQ, है ना, और अल्फा ऑफ OP विल बी व्हाट, इट इज अगेन सम वेक्टर। यस सर। अल्फा क्या करेगा उसको, अगर अल्फा पॉजिटिव है तो वेक्टर की लेंथ को बढ़ा देगा, अगर नेगेटिव है तो रिवर्स कर देगा, है ना। और हर वेक्टर के लिए आप, और यहाँ पर अगर आप देखें, बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो जीरो वेक्टर इज ऑल, जीरो इज आल्सो देयर, है ना, यस सर। क्योंकि ओरिजिन से पास हो रही है लाइन, तो जीरो इज आल्सो देयर, जीरो वेक्टर इज आल्सो देयर, द जीरो वेक्टर इज आल्सो बिलोंग टू दिस सेट S, अगर मैं S लाइन कह दूं, है ना। So you can say in general कि any line passing through origin, is a vector space and hence a subspace of P2, okay। यस सर। अब अगर यही है, मैं लाइन कोई पासिंग थ्रू ओरिजिन नहीं लूं, सपोज आई एम टेकिंग अ न्यू लाइन, सपोज आई एम टेकिंग एनी लाइन, ये तो आपका हो गया है ना। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नाउ आई एम टेकिंग, अगेन आई एम प्लॉटिंग द फिगर, सेम फिगर। नाउ आई एम टेकिंग अ लाइन, वही है आपका ये, सपोज इट इज योर XY प्लेन, सेम XY, suppose it is your XY, and now I am taking some line not passing through the origin. Suppose I am taking this pink color line, this is a line, suppose L, not, so L I am taking, L is a line, तो अगर आप L को लाइन को लिखेंगे तो यू कैन टेक अ लाइन,
इसमें क्या होंगे, सब कलेक्शंस होंगे, सम एक्स वाई। सपोज आई एम टेकिंग नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, है ना, लाइन इज नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अगर नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन की अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आपको पता है, ax प्लस by इज इक्वल टू c वेयर c इज नॉट जीरो, नॉट इक्वल टू 0। है ना। जब आपने ये कंडीशन लगा दी c नॉट जीरो, तो इट बिकम्स इक्वेशन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक, अब बताओ जरा, क्या ये सेट है? नो सर, सर ये ये हम कर चुके सेट वेक्टर सबसेट नहीं है सर। आइडेंटिटी वेक्टर नहीं है हाँ, सर, जीरो अगर है। आपको याद हो हमने ये प्रॉब्लम जो करी थी वैसी तो हो गई है। ये जो मैं बता रहा था याद ही यस सर। कि x4 इज 0 तो था, लेकिन अगर x1 इज 1 है तो इट वाज नॉट अ वेक्टर स्पेस। तो उसी टाइप की तो इक्वेशन हो गई है कि ax प्लस by इज इक्वल टू c वेयर c इज नॉट 0, यानी कि c में भी 1, c में भी 2। बल्कि हमने एक प्रॉब्लम करी भी थी आपकी, ये g पार्ट था आपका उसका, है ना, जहां पे मैंने बताया था कि अगर राइट हैंड साइड कोई 0 दे रखा है देन इट विल बी अ वेक्टर स्पेस, बट अगर राइट हैंड साइड 0 के अलावा कोई नॉन जीरो क्वांटिटी है इट विल नॉट अ वेक्टर स्पेस बिकॉज 0 विल नॉट लाइंग इन सेट ए, है ना, और सी नॉन जीरो है। तो इसका मतलब ज्योमेट्रिकली क्या मतलब हुआ कि एनी लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन इज नॉट अ सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस V2 वेक्टर या स्पेस। V3 या V4 जैसा भी हो, है ना। तो यू कैन राइट सिंस 0 0 डज नॉट बिलोंग्स टू L, है ना, ओरिजिन ही नहीं है। सो ज्योमेट्रिकली आप इसको डायरेक्ट बता सकते हो। If somebody asks give any geometrical example, so you can explain this example. Sir, take R2 as a plane and take any line. If line is passing through origin, it will be a vector space and hence subspace. Or it is not passing through the origin, it is not a subspace. Plot करके दिखा सकते हैं, reason कोई पूछेगा, reason explain कर सकते हैं कि what condition is placed there. So any line not, and a not is mentioning here, not passing through the origin is not a vector space and hence not a subspace of R2। वेक्टर R2 है ना, यूक्लिड। जो भी दिया है। हाँ, अच्छा एक चीज और आप देखें अगर कि कोई भी, अच्छा जैसे अगर आपसे मैं जब बात आई है, चलो तो कुछ और बात करते हैं। व्हाट अबाउट सर्किल, क्या सर्किल को मैं कह सकता हूँ वेक्टर स्पेस है? बताओ। इफ आई एम सेइंग सर्किल, सपोज आई एम टेकिंग अ यूनिट सर्किल, तो यूनिट सर्किल की क्वेश्चन क्या होगी आपकी, अगर मैं सी से डिनोट करूं तो सी विल बी अ कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1, है ना। ये तो वन इसमें भी वन आ गया तो नहीं होगा ये भी। तो सर्किल भी आपके पास क्योंकि 1 आ गया, तो यू कैन सी हियर सर्किल इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। क्यों भाई? यस सर। क्योंकि इसके अंदर 0 नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल एग्जांपल आपको पता होना चाहिए। कोई आपसे पूछ ले भाई सर्किल है कि नहीं है, आप एकदम से घबरा जाओगे, सर्किल के बारे में सोचा ही नहीं। तो सर्किल नॉट अ वेक्टर स्पेस, रीजन आपको पता चल गया। चलो अच्छा, मैं सर्किल को थोड़ा डिस्क बना दूं, सपोज नाउ आई एम टेकिंग डिस्क। डिस्क में क्या फर्क होता है बताओ? सर ये एरिया लेस देन या इक्वल लेस टू देन करना इक्वल टू 1 हो पड़ेगा। जाता है बस। डिस्क में क्या होगा, डिस्क का मींस यू आर टेकिंग नाउ द, इंटीरियर रीजन लेंगे उसमें। ये सारा ले लेंगे, है ना। हाँ इंटीरियर रीजन। इंटीरियर रीजन आ गया। यूनिट डिस्क ले रहा हूं मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस ओनली, यू कैन टेक एनीथिंग बट आई एम अज्यूमिंग डिस्क, यूनिट डिस्क। बताओ अब क्या राय है आपकी? नहीं होगा सर। 0 है नहीं है ये बताओ? हाँ, जीरो है। यस है तो है, ओरिजिन आ यस रहा है। सर 0 तो है। लेकिन अगर ऐड करेंगे हाँ, बाहर जाएगा सर। बाहर चला है। भाई आप अगर एक प्रॉपर्टी देखें, एक वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन अल्फा ऑफ वेक्टर यू शुड आल्सो बिलोंग्स टू द सेट। अब आपने मान लो इसकी रेडियस कह दी कि साहब इसकी रेडियस मान लीजिए 100 है, आपने अल्फा कोई बड़ा नंबर ले लिया, बाहर निकल गया, क्योंकि अल्फा इज एनी रियल यस नंबर, सर। है ना। इट मींस व्हाट कि इफ यू आर फिक्सिंग द बाउंड्री, यू आर टेकिंग अ
बाउंडेड रीजन इट विल नेवर बी अ वेक्टर स्पेस, क्योंकि जैसे ही आपने बाउंड्री लगाई तो इसका मतलब आपने एक मैक्सिमम वैल्यू फिट कर दी, लेकिन जैसे ही आप अल्फा बढ़ा लोगे बाहर निकल जाएगा हमेशा, है कि नहीं है? अच्छा तो सर्किल ये डिस्क वाली इज बात। नॉट अ वेक्टर स्पेस। अगर आई एम सेइंग एनी लाइन सेगमेंट, सपोज आई एम टेकिंग अ लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट क्या होता है? किसी लाइन का एक पोर्शन ले लो, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। इसकी इक्वेशन क्या होती है कि अगर ये आपके पॉइंट मान लीजिए x1 x2 है, द इक्वेशन ऑफ लाइन सेगमेंट इज लैम्डा x1 प्लस 1 माइनस लैम्डा x2 वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू 0 1, है ना? ये लाइन सेगमेंट की इक्वेशन होती है। ऑल द x such that x is equal to this, it is called a line segment। पढ़ा होगा लाइन सेगमेंट तो आपने भाई 12th क्लास में, है ना? यस सर। तो लाइन सेगमेंट इज अ वेक्टर स्पेस और नॉट? नो सर। हाँ सर। बिकॉज वही सेम रीजन कि जब आप अल्फा से अब आपकी लेंथ फिक्स है, लेकिन आप जब अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे x2 में हो सकता है वो बाहर चला जाए, है ना? तो लाइन सेगमेंट इज नॉट अ वेक्टर स्पेस बट अ Yes, होल sir. लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज अ वेक्टर स्पेस, है ना? क्योंकि वो ओरिजिन से भी पास हो रही है, और होल लाइन का मतलब यू हैव इनफाइनाइट लेंथ, you don't have any boundary, so when you have some boundary it will not a vector space। जैसे मैंने डिस्क बताया, सर्किल बताया, और अगर it is not containing origin that it is also not vector space। जैसे लाइन आपकी L है, it is of infinite length, लेकिन it is not passing through origin, so it is not a vector space। अगर मैं यही लाइन आपको ओरिजिन से पास होते हुए ले लूंगा तो वो आपकी वेक्टर स्पेस बन जाएगी। ओके, so whenever you have a boundary it will और not सर अगर ये डिस्क